Namaste, brothers and sisters, ladies and gentlemen, भाइयों बहनों, आदरणीय सम्माननीय पूजनीय प्रोफेशनल्स, ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, डॉक्टर्स, researchers all around the world, those who are listening. I send Dr. Rakesh from USA. Welcome all. Your presence is praiseworthy, admirable, appreciable. You are providing your valuable time. I thank all of you. Today is very important time because we are learning about the power of truth. The power of truth is the biggest truth, the greatest power in the world. Somehow, someone who is compelled by circumstances, situations, any kind of pressure, and if he speaks the truth, so he is the greatest powerful person, and he can be escaped and saved from the great sin. How? There is a story behind it. There was a man who was the true speaker, true listener, true watcher, and he was compelled by the circumstances. Under circumstances, he became a thief, and he was a true thief. He was not a false thief, because it was in his habit. He randomly speaks the truth. Whenever inquired about that person, and whenever he faced any situation, he spoke the truth. He speaks the truth. What happens when the police runs after that thief? Then the thief is going on the road, and he has to cross a village where there was a saint who was sitting on the road and doing hard work by the cotton. He has a lot of cotton. Then what happened? The thief comes and says that I am thief. So the saint say that you are really thief. He says that yes. Then he was astonished that if he is thief, then why he is speaking thief himself. So it was very strange and wonder for them. What happened? He gave the refuse under the cotton to the thief. What happened? After some time, the police came and inquired about that person. A person has come here, a person who has stolen something, and then the saint spontaneously and naturally say that yes, he came, he is under the cotton. Then the police thought that the saint is foolish and he is telling lie. How a thief can come under this cotton? If he is here, then is he the secured and safe place for that thief? So they thought it is the bad thought, it is the false answer. So police did not believe that there is a thief under the cotton.
After some time, what happened? The thief comes out from the cotton, and he was full of fear, sweated his body, and asked from the saint, "O saint, why did you tell them I am under the cotton?" Then saint says that if you, being a thief, you are telling the truth, then how can I speak the lie by being a saint? Because it's the first duty of a saint to speak the truth. So it is only the truth. Don't care, don't mind. It is only the truth that has saved you and escaped you from that police. So truth is the biggest power of the word. So it is rightly said in our scripture that सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप. This is the power of truth. And what is the power of humility? यानी दीनता की ताकत जो हमें बेपरवाह शाह मस्ताना बेपरवाह जी ने सिखाई. शहनशाही नूरी डेरा सच्चा सौदा की दीवारों पर यह वचन लिखाया. जिंदा राम के हुक्म से सबको निवेदन या अर्ज की जाती है कि जो प्रेमी शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी को जोड़े झाड़ने वाला बोलेगा, उसको दरगाह में सबसे अव्वल या प्रथम दर्जे पर कुर्सी मिलेगी, और जो सेवाधारी कहेगा उसको दूसरे दर्जे पर कुर्सी मिलेगी, और जो प्रेमी किसी तारीफ़ के वचन से बुलाएगा उसको नरकों में भेजा जाएगा. जो इस वचन को मानेगा वो सुख पाएगा. दूसरा, जो शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी की निंदा करेगा उसको जिंदा राम सबसे पहले दरगाह में पहुंचाएगा, और जो प्रेमी होकर और शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी सेवाधारी से नाम रास्ता लेकर निंदा करेगा वह सीधा नरकों में जाएगा, और यह वचन कभी खाली नहीं जाएगा. आप जी ने पवित्र शरीर त्यागने और शब्द रूप जाने के कई सप्ताह पहले ही कई इशारे किए. कई महात्माओं और प्रेमियों की गुरु बनने की आंतरिक भावना देखते हुए नीचे वचन लिखा गया है, दीवारों पर भी लिखवाया. ये रूहानी ताकत प्योंद का नमूना है. प्योंद न लगे तो यह ताकत आती नहीं. सेंट पॉल जी फरमाते हैं कि मैं जिਉਂਦਾ हाँ, हुण मैं नहीं, मेरे अंदर मसीह बस रहा है. इसी खातिर यह नमूना आगे बनाया है कि इस बॉडी का कोई हुक्म नहीं लगा है कि फलाने दिन छोड़ना है. यह डर से लिखा है. ऐथे सैकड़ों आदमी गुरु बनना चाहते हैं. आगे ही बताया जाता है कि हर कोई पुख्ता रहे, मौज के हाथ चढ़े, अगर नहीं तो नरकों में जाएगा. कोई एतबार करे या ना करे. परम संतों के राम ने राई से पर्वत किया, बुल्ले शाह पर्वत से राई किया. सतनाम सिंह, यह दोनों बाडियाँ सतगुरु की नज़र में रखी हैं. तीसरी बाडी खुफिया तौर पर है, उसका बताने का हुक्म नहीं. मौका पर बताएगा जाएगा, उसमें हुक्म से मस्तानी मौज बस जाएगी तो ऊपर से ताकत के हुक्म से काम करवाएगी. इस जरिए बगैर यह ताकत नहीं आ सकती. अर्थात ये रूहानी ताकत का प्रकट होना प्योंद या पैबंद या कलम की तरह है. यानी रूहानी ताकत किसी जीव को अपने पूरे सतगुरु से नाम रास्ता लेने और उसकी दया मेहर से ही मिल सकती है. परम संतों के न्यारे राम शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी अक्सर फरमाया करते कि यह ताकत अपने बच्चे यानी अपने चिताए हुए जीव को ही देवेंगे. प्योंद न लगे यानी अपने सतगुर नाम रास्ता देकर उस जीव पर दया मेहर न करे तो यह ताकत आती नहीं. सेंट पॉल जी फरमाते हैं कि मैं जीवित हूँ, अब मैं नहीं, मेरे अंदर ईसा मसीह बस रहा है. विचारणीय है कि सेंट पॉल जी ईसा मसीह द्वारा ही
दीक्षित या बैप्टाइज थे। आगे परम संतों के न्यारे राम श्याम मस्ताना बलोचिस्तानी जी ने अपनी बॉडी या पवित्र शरीर छोड़ने का इशारा किया और फरमाए कि यहाँ सैकड़ों आदमी गुरु बनना चाहते हैं। आगे फरमाया, आगे समझाया कि हर कोई पुख्ता या पक्का रहे, यानी हर कोई अपना पूर्ण विश्वास व भरोसा एकमात्र परम संतों के न्यारे राम श्याम मस्ताना बलोचिस्तानी जी पर ही रखे और अपने मन को और गुरुओं की तरफ बिल्कुल न लगाए, अन्यथा नरकों में जाएगा। ये स्पष्ट या साफ है कि जो प्रेमी या सत्संगी खुद को या अपने कुटुंब या चाहने वालों को इन सैकड़ों गुरुओं के पीछे लगाएगा, वह खुद को और बाकियों को नरकों का अधिकारी बना रहा है। चाहिए यह है कि परम संतों के न्यारे राम श्याम मस्ताना बलोचिस्तानी जी का प्रेम व विश्वास पक्का करें और रखें। वक्त गुरु की आड़ में इन ठगने वाले सैकड़ों गुरुओं से बचें। कोई विश्वास करे या न करे, परम संतों के न्यारे राम ने राई से पर्वत किया बुल्ले शाह, पर्वत से राई किया सतनाम सिंह। यह दोनों बाडियाँ अर्थात महात्मा बुल्ला जी और महात्मा सतनाम सिंह जी सतगुरु की नज़र में रखी हैं। तीसरी बॉडी खुफिया तौर पर है, उसका बताने का हुक्म नहीं, मौका पर बताया जाएगा। उसमें मस्तानी मौज बस जाएगी तो ऊपर से ताकत के हुक्म से काम करवाएगी। इस जरिए के बगैर यह ताकत नहीं आ सकती, अर्थात रूहानी ताकत या तीसरी बॉडी गुप्त रखी जाए है, यानी अभी नाम गुप्त है, आगे भविष्य में वक्त आने पर ही बताया जाएगा। उसके अंदर बैठकर परम संतों के न्यारे राम श्याम मस्ताना बलोचिस्तानी जी काम करेंगे। इस जरिए के बगैर या इस तरीके के अलावा यह रूहानी ताकत नहीं आ सकती। इस बारे में एक सेवादार को परम संतों के न्यारे राम श्याम मस्ताना बलोचिस्तानी जी फरमाए, मनमते मकर चलाकी करके गुरु बनने से अच्छा है दरबार में झाड़ू लगाकर सेवा करके 2 रोटी खाकर ज़िंदगी बिताना, यानी अपने मन के कहने पर चलकर छल कपट या चालाकी करके गुरु बनने और कहाने से कई गुना अच्छा है सादगी में रहकर डेरे में झाड़ू लगाने आदि की सेवा करके ज़िंदगी बिताना। ऐसे सेवादार का मालिक की दरगाह में ऊंचा दर्जा है मनमते गुरु बनने वालों की तुलना में। सतगुरु धाम रानिया के मुख दरवाजे पर यह वचन लिखवाया, बेलगाम पुस्तर बेमुहार मन रूपी घोड़ा सारी उम्र संसार में दौड़ता ही दौड़ता रहा। काल रूपी शेर ने आकर पंजा दिखाया कि ठहर जा, हुण तेरा नवेड़ा करांगा चंगी तरह। सो बेपरवाह जी ने दीनता नम्रता के बारे में लिखा कि जैसे हमारे अंदर गुण आ जाता है तो हमें और भी ज़्यादा विनम्रता दीनता की ज़रूरत होती है। बेपरवाह जी ने लिखा, कलयुग विच दीनता और विनम्रता जरूरी है। ज्यों ज्यों फल लगता जाए त्यों त्यों डाली झुकती जाए। यूं ही ज्यों अंदर तरक्की होती जाए उतनी ही दीनता नम्रता लानी चाहिए। सतगुरु जो बाहर से ठोकता है वो अंदर हाथ भी दे के रखता है। गरीबी बीमारी और निरादरी को मालिक की मेहर समझनी चाहिए। फिर लिखा आगे, वरी सतगुरु ने जो काम लेना है ले लेता है। कैसे? दिल और बल दे करके